Good morning, children. As we have finished the gravitation part, generally this lesson is divided into two lessons or two parts. One is gravitation and another is flotation. So today we will discuss about flotation. Okay, means totally ये liquid पे based रहेगा. Float कोई चीज़ हो रही है नहीं हो रही है. So our first small part है यहाँ पे flotation में. First is buoyancy बेटा. What is buoyancy? For understanding the buoyancy, definition easily आप learn कर सकते हो. But for understanding the process, suppose you have a bucket. Okay, filled with water. Take an object, just put in a liquid. What will happen there बेटा? हमने स्टडी किया कि when we will release the object or free fall from the height, it will move to the downward direction. Okay, because of gravitational force. So in the flotation, yes, gravity तो यहाँ पे भी काम करेगा और नीचे की तरफ भी जाएगा, but यहाँ पे हम gravity की बात नहीं कर रहे हैं बेटा. When we will put object in a liquid, it will exert a force. Object will, gravity तो सब पे लग रहा है, तो वो तो टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन में है नहीं. अगर हम इसको छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा ही, बट ये लिक्विड में है तो लिक्विड का भी कुछ एक्टिविटी होगा यहाँ पे बेटा. सो ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट force in a liquid in downward direction. Okay, understood beta? When we will put an object in a liquid, it will exert a force in downward direction. At that time, liquid, whatever, water or any other liquid, oil is present, that will also exert pressure on object, force on object. That force is known as buoyant force. Okay, that force is known as buoyant force or upward force. Force applied by the object in downward direction is known as downward force, and force exerted by the liquid in upward direction, that is known as upward force. Any object, when any object immersed in a liquid, that object will experience some force from the liquid. At the same time, object also exert force in a liquid, and object नीचे की तरफ force लगाएगा, that is a downward force, and a force exerted by the liquid in upward direction, that is upward force or buoyant force. अब what is buoyancy? That is the buoyant force. What is buoyant force? Force exerted by the liquid in upward direction, that is buoyant force. I hope कि आपको समझ में आ गया. Then beta, what is buoyancy? In simple way we can say that the property or the tendency of liquid to exert an upward force on a object is known as buoyancy. ये फोर्स लग रहा है और ये पूरा जो फिनोमिना हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, जो सिस्टम यहाँ पे वर्क हो रहा है, दैट इज buoyancy. Okay, the tendency of, if you want you can write as well beta, the tendency of a liquid, any liquid, I'm not talking about here only water, we are discussing here liquid. The tendency of a liquid to exert an upward force, the tendency of liquid, that is the liquid present, the tendency of liquid exert an upward force on a object placed in it is known as buoyancy. What is buoyancy? Buoyancy is a process in which
liquid exert upward force on a object, that is known as buoyancy. Force exerted by liquid in upward direction, that is known as buoyant force. Okay. Next question, that is very important question. When we will immerse objects in a liquid, we have seen that beta some object float on water and some object sink in water. रीजन क्या है ये जानते हैं. दो तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट is floating on a water, when object floats on water. Okay beta, just tell me, this is a box, force applied by A, force applied by B, and object is moving in this direction. What is your conclusion? You will say that force applied by A is more than B, that's why object is moving in this direction. Okay, similar thing just apply here as well. There are two forces acting. Okay, दो फोर्स काम कर रहे हैं. वन, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में, फ्लूइड सॉरी लिक्विड लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम, लिक्विड अपवर्ड में. फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है. इट्स मीन दैट कोई एक फोर्स ज्यादा है. विच वन बेटा? लिक्विड. फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज मोर कंपेयर टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, इसलिए लिक्विड का फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो फ्लोट हो रहा है. अगर वो ऑब्जेक्ट बेटा सिंक हो जाए, उस टाइम क्या होगा? डूब जा रहा है, इसका मतलब इसका फोर्स कम पड़ रहा है और इसका फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए वो डूब गया. आई होप कि ये पहला सिस्टर रीजन समझ में आया होगा. व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर, then you will explain that if the object is floating on water, it's mean that buoyant force is more than the force exerted by the object. If the object sink in water, अगर डूब जा रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने ज्यादा फोर्स लगा दिया इसलिए वो डाउनवर्ड गया. अगर ऑब्जेक्ट डूब रहा है इसका मतलब वो डाउनवर्ड में जा रहा है, इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट का फोर्स ज्यादा है. अगर वो फ्लोट हो रहा है इसका मतलब लिक्विड का फोर्स ज्यादा है बेटा. दैट इज द फर्स्ट रीजन. नाउ सेकेंड रीजन जिस पे हम जनरली बात कर चुके हैं in first lesson, that is density. ऐसा नहीं कि एक ही रीजन काम करता है, दोनों रीजन साथ में ही काम करते हैं. अब उसको किस वे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू. अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इट्स मीन दैट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस. अगर ऑब्जेक्ट डूब जा रहा है, डेफिनेटली डेंसिटी इज मोर. बट एट द सेम टाइम इन द सेकेंड फैक्टर भी हम बोल सकते हैं, दैट इज द अपवर्ड फोर्स, बायंट फोर्स के भी टर्म्स में. नेक्स्ट वन इज डेंसिटी. डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम. अब मास पर वॉल्यूम को समझो. सपोज वी हैव अ नीडल and we have a plastic ball. When we will immerse both objects in a liquid, we know that what will happen. It will sink and it will float. If you have any doubt, please comment in comment box or WhatsApp में. Okay, ये डूब जाएगा बेटा, ये फ्लोट करेगा. भले इसका वेट ज़्यादा हो, मास ज़्यादा हो तो भी, अगर ये सपोज 10 ग्राम का भी है और ये 1 kg का भी है,
तो भी ये फ्लोट ही करेगा और ये डूब जाता है जनरली. वाई? दैट इज डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. अब मास ऑफ नीडल कील जो भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसका मास जो है आयरन पिंस बोल सकते हो 10 ग्राम ओनली, एंड एट द सेम टाइम इट कवर्स वेरी वेरी लेस वॉल्यूम. ओके, तो इसका जो डेंसिटी आएगा वो इससे ज्यादा आ रहा है. डेंसिटी में दोनों चीज याद रखना. मास है ओनली 1 kg, बट उसके कंपेयर में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और इसका 10 ग्राम है उसके कंपेयर में वॉल्यूम. अगर इसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊं डेंसिटी को, 2 ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक 100 ग्राम का और एक 1000 ग्राम का. ओके, इसका वॉल्यूम सपोज 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. ओके, सॉरी, वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब. इसका वॉल्यूम है सपोज 700 centimeter cube. Okay, wait. So when we will find the density, then mass by volume, mass by volume. So here density will be 2. Here density will be 1.3 something. अगर हम मास देखेंगे तो हम बोलेंगे मास तो इसका बहुत कम है, तो फिर वजन कम हुआ तो डूबा क्यों नहीं? क्योंकि फ्लोट क्यों नहीं हुआ? इसका मास ज़्यादा है फिर भी ये फ्लोट क्यों कर रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ डेंसिटी ओनली. डेंसिटी को आप ये समझो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ओनली. सपोज ये है आपके पास, सपोज इट इज अ नीडल ओनली. अब इसने जो मास कवर, इसका जो मास है सपोज 20 ग्राम है, इसने बहुत लेस वॉल्यूम कवर किया है, तो वॉल्यूम इज जनरली डिनोमिनेटर के प्लेस में है. अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो रिजल्ट ज़्यादा आता है, मीन्स डेंसिटी ज़्यादा आएगा. एंड द केस ऑफ प्लास्टिक बॉल, इसका वेट मास उतना ज़्यादा नहीं है बट ऑक्यूपाइड स्पेस बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बेटा. तो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा तो जो रिजल्टिंग डेंसिटी आता है वो बहुत कम आ जाता है. ये रीज़न है. आप ये नहीं सोचोगे कि इसका वजन ज़्यादा है इसलिए ट्रेवल डूबा नहीं या वो नहीं. ओके, सो डेंसिटी इज अ मेन फैक्टर that will decide that object will float or sink. If object float on water, it means that density of object is less than the density of water. If object sink in water, in the case of metals generally, it's mean that density of that object or metals is more than the density of water. तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंक और फ्लोट जब करेगा तो उस टाइम क्या सिचुएशन क्रिएट होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो, और वी कैन से दैट लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन, वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव डेंसिटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आफ्टर दैट वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स. ओके.